Good morning, friends. Today we are going to start with the second session of chapter 3, that is reconstitution of partnership firm. In that we are taking into consideration the first situation, admission of partner, under which we had studied some concepts and moreover the meaning of the admission of partner, need of partnership, admission of partner. So now we are going to see into the practical problems. Before that we should know about how to make the journal entries of the admission of partner situation. See, first slide is telling you if the X and Y are partners, then journal entries will be started. If some partner is admitted, suppose it is a Z partner and existing partner, that is old partners X and Y are there. Suppose they have some general reserve amount that will be distributed among these partners, old partners only, not for the new partner. So journal entry would be journal reserve account debit, whatever the amount would be, and to X capital account, to Y's capital account, that is old partners capital account. What is the narration for it? Being general reserve distributed among the partners. Now see the second entry. The second entry is telling you that when the credit balance on profit and loss account is given, in your problem there is a balance sheet provided, as I told you in yesterday's lecture, that there is a problem of the partner, admission of partner, like that there is a balance sheet provided, ratio provided of old partners, and some adjustments are given. So in that balance sheet, on the liability side, you will find that general reserve amount that should be distributed among the old partners. If something else is given in adjustment regarding general reserve, that will be followed. If it is nothing given, that time you will pass this journal entry, general reserve account debit to old partners capital account. See the second entry. If there is a on liability side only, that is a credit balance of profit and loss account. On the liability side, if you will see the item profit and loss account, that is the credit balance on profit and loss account, it is also known as undistributed profit. जो profit distribute नहीं किया है, that time it will be showing you profit and loss account balance, and it is shown on the liability side of the balance sheet. So at that time you will distribute this credit figure of the profit and loss account among the partners, old partners only, in their old ratio. So what is narration for it? Being profit and loss account credit balance distributed among the partners. See the next slide, third entry, and posting also in the ledger also. See third entry, the old partners capital account debit to profit and loss account, means what? X capital account debit, whatever the amount in debit column, Y's capital account debit, and to profit and loss account. What is this entry? This entry is telling you about the debit balance distribution. If there is an undistributed profit, may happen that sometimes there is an undistributed loss which is not debited to partners capital account. At that time you will make this entry while you are making the admission of new partner. So what is the entry for it? Old partners capital account debit to profit and loss account. So where this item will be shown, पिछला आइटम पिछली एंट्री में बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस पे क्रेडिट बैलेंस है और वो लाइबिलिटी साइड में दिख रहा है, तब आप उसको डेबिट देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. जब उसको डेबिट बैलेंस है मतलब वो एसेट साइड में दिख रहा है, जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में दिख रहा है, एट दैट टाइम यू विल गिव इट क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट देंगे और पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट देंगे. सो दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज bifurcated in the partners, that item will not be shown in the new balance sheet. नए कंडीशन में नए पार्टनर के आने के बाद ये बैलेंस अभी नहीं दिखने वाला है. सो यू हैव नलिफाइड दैट इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसको डेबिट था, आपने उसको क्रेडिट दे दिया. नाउ इट इज नेवर फाइंड इन द न्यू बैलेंस शीट. एडमिशन, न्यू पार्टनर एडमिशन के बारे में क्या क्या एंट्रीज होंगी वो अभी यहाँ पे इस स्लाइड में दिखाई दे रही.
व्हाट इज गिवन, पार्टनर एडमिटेड इन फर्म। तो पार्टनर अपने साथ क्या क्या लाएगा, कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाएगा, क्योंकि हमने ये देखा है कि नया पार्टनर अपने साथ कुछ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाता है, गुडविल अमाउंट लाता है, एंड दैट इज गिवन इन द fourth journal entry. See that if he has brought amount of capital in cash, or if it is by check, it is a bank account. So if cash account, if it is brought in cash, cash account debit to new partners or incoming partners capital account. So entry, it is narration would be being new partner brought the capital in the form of cash. So entry you understood. Next is regarding to the goodwill. गुडविल ये बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट होती है, ये आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि इसके कुछ 3-4 केसेस है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट केस, इफ ही हैज़ ब्रॉट द गुडविल अमाउंट इन कैश। तो ये गुडविल अमाउंट कैश में क्यों लाया, ये पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि गुडविल अमाउंट कैश में लाने की ज़रूरत क्या है। is supposed to be the person is not having goodwill, social value, he is not admitted for that goodwill purpose, he is just admitted for the capital purpose। तो उसने अगर उसका कुछ सोशल वैल्यू वैसे नहीं है, क्रिएट सोशल वैल्यू किया हुआ नहीं है, जस्ट इट इज़ जस्ट अ पर्सन और अ पर्सन, सो दैट टाइम he has to contribute in the firm's goodwill, फर्म के गुडविल में उसे कुछ कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। सो दैट इज अमाउंट ही हैज़ टू ब्रॉट ऑफ हिज शेयर इन द पार्टनरशिप फर्म। सो व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर इट, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो उसके शेयर का गुडविल उसने लेके आया। तो ये गुडविल कितना होगा, क्या होगा, इसका कैलकुलेशन हमने प्रीवियस सेशन में देखा है। 2 मेथड्स वी हैड लर्नड, फर्स्ट इज average profit method, second is a super profit method. By that calculation you will get firm's goodwill, और यहाँ पे आप उसका शेयर, उस न्यू पार्टनर का शेयर, इनकमिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे और उतना कैश उसे लाने को कहेंगे। सो दैट ही हैज़ ब्रॉट दैट मच कैश एज अ गुडविल। द एंट्री वुड बी, ध्यान से देखना एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर का नाम नहीं आएगा। What is entry? Cash account debit to goodwill account. So what is narration? Being goodwill brought by the new partner in the form of cash. Next entry, next step of that entry, that goodwill is distributed. Whatever the goodwill brought by that partner is distributed among the partners. So next second entry of that situation, if he has brought in cash, second entry would be goodwill account debit to ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब ये गुडविल आप पार्टनर्स में क्रेडिट कर रहे हैं, पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आप बढ़ा रहे हो। वो शेयर ऑफ गुडविल जो भी उसने लाया है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट होगा किन दोनों में, ओल्ड पार्टनर्स में। सो व्हाट इज नरेशन फॉर इट, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द सैक्रिफाइस रेशियो। दिस टर्मिनोलॉजी आई वांट टू टीच यू इन द प्रैक्टिस लेसन्स where we are going to solve the problems. तो sacrifice ratio होता क्या है एक्चुअली, कैसे कैलकुलेट होता है ये तो हमने देख लिया है, पर इन डिटेल कैसे करना है वो मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बताऊंगा। सी नोट, गुडविल विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट इन दिस सिचुएशन। अगर उसने कैश में गुडविल लाया तो आपको उसका पोस्टिंग बाद में बैलेंस शीट में करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Goodwill will not be shown in the balance sheet when it is brought by new partner in cash. See revaluation entries जो हम कर रहे हैं अभी। So what is next entry, 7th entry, that is asset account debit to revaluation account. When it is happening this entry, when asset value is increased while revaluation of the assets and liabilities। मतलब जब नया पार्टनर आता है कि एसेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज़ वैल्यू क्या क्या चेंजेस हुए ईयर के बीच में, क्योंकि पार्टनर ऐसे डिसाइड करके तो ना आएगा कि 1 अप्रैल को ही वो बिजनेस में आएगा, ऐसे कुछ नहीं है। in between of the year he might be get admitted,
So at that moment what is the situation of assets and liabilities that must be calculated. क्यों कैलकुलेट करनी है? क्योंकि हमें नया बैलेंस शीट फिर से बनाना है. So in between of the year when you are preparing that balance sheet, you must know the assets value and liabilities value at that particular date. So that's why whatever the revaluation of that assets, that should be get affected in the balance sheet. For that purpose we are maintaining the revaluation account, and for that purpose only we are revaluing that assets and liabilities. कि इस रिवैल्यूएशन के दौरान अगर एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू बढ़ती है या फिर कम होती है तो उसका इफेक्ट, उसका इम्पैक्ट आपको जर्नल एंट्रीज में और लेजर पोस्टिंग में दिखाई देता है. तो व्हाट इज़ द सेवेंथ एंट्री कि जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एसेट्स को और डेबिट दे दो. सपोज टू बी बिल्डिंग इज ऑफ ₹5 लाख एंड द वैल्यू ऑफ दैट बिल्डिंग इज नाउ इंक्रीज टू 5,50,000. तो कितने से एसेट बढ़ गई? 50,000 से. सो यू विल राइट देयर एंट्री बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 50,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 50,000. उतने अमाउंट से आपका एसेट वैल्यूएशन बढ़ा है. By that amount only you will write the amount in this amount column. Okay, you will transfer that much amount only in the revaluation account. Next entry is regarding to the decreasing value of the asset. Now what is entry? Revaluation account debit to asset account. Why credit is given to the asset? Because asset value gets decreased. Originally asset को balance कौन सा होता है? Yes, you have guessed correctly, that is debit balance. अगर उसको हम क्रेडिट देंगे ऑटोमेटिकली दैट अमाउंट विल बी गेट डिक्रीज्ड. तो हमें वो इफेक्ट देने के लिए एसेट को क्रेडिट देना पड़ेगा. नरेशन इज सेम, लिटिल बिट डिफरेंस इज देयर बीइंग द वैल्यू ऑफ एसेट इज डिक्रीज्ड. नाउ नाइन्थ एंट्री, रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज. ओके, लायबिलिटीज created or increased, at that time you will give credit to that liability because liability is originally having the credit balances. More if liabilities are created, you will give credit to it, and if value of that creditors bills payable increased, that's why it is get credited. उसका वैल्यू बढ़ता है तो उतने वैल्यू से आपको लायबिलिटी, उस लायबिलिटी को क्रेडिट देना है. यहाँ पे लायबिलिटीज नाम नहीं आएगा, यहाँ पे टू बिल्स पेबल या फिर टू बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर टू क्रेडिटर्स ऐसा नाम आएगा. सो दैट एंट्री वुड बी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट. अगर क्रेडिटर्स अमाउंट बढ़ता है तो ये एंट्री होगा. इफ द value of that liability get decreased, a reverse entry you need to pass, that is liabilities account debit to revaluation account. Narration is also easy. Let's see the next 11th entry, RDD account debit to revaluation account. When this entry should be passed? When the RDD provision is created or increased. ध्यान में रखना, दोनों भी है कि RDD की प्रोविजन अगर सपोज टू बी 5,000 रुपीज़ है and according to the new calculation it comes 6,000, so difference is of 1,000. और वो डिफरेंस आपको रिवैल्यूएशन में डालना है, उसी का इफेक्ट हम दे रहे हैं. सो एंट्री वुड बी आरडीडी अकाउंट डेबिट 1,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000. अगर आपको बैलेंस शीट में आरडीडी दिखाई ही नहीं दे रहा है एट दैट मोमेंट, आरडीडी का आपको वहाँ पे कैलकुलेशन का परसेंटेज दिया होगा. So suppose in that problem is percentage given of supposed to be 5% on debtors. Suppose amount is 50,000 and 5% आपको कैलकुलेट करना है. 10% से होता है 5,000, 5% से होगा 2,500. So you need to pass this entry RDD account debit 2,500 to revaluation account 2,500. So RDD created. RDD existing RDD amount नहीं थी, newly RDD created. So that posting will be like that. Next is 12th entry, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आरडीडी अकाउंट. ऐसा भी हो सकता है कि नए कैलकुलेशन से आपका आरडीडी वैल्यूएशन कम हो जाएगा या फिर आपको आरडीडी पूरा राइट ऑफ करना है, मतलब रिमूव करना है. So that time this entry will be passed, revaluation account debit to RDD account. Supposed to be amount of RDD is rupees 1,000
and at the time of problem, if it is given in problem that write off RDD, that time you will pass entry like that, revaluation account debit whatever the amount and to RDD account, totally amount of RDD will be removed. रिड्यूस भी हो सकता है, 1000 से 500 का भी प्रोविजन आ सकता है, सो 500 गेट रिड्यूस्ड, that's why you will pass entry revaluation account debit 500 to RDD account 500. Next 13th entry is regarding to the sharing of revaluation profit or loss. आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, आपका रिजल्ट आ रहा है वहाँ पे, ये जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने देखी अभी ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन हमने देखा, ऐसा कुछ रिजल्ट आ गया, रिवैल्यूएशन को डेबिट मिला, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट मिला, रिवैल्यूएशन को फिर से क्रेडिट मिला, इसकी कुछ इफेक्ट आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और उसका आप बैलेंसिंग करोगे, बैलेंसिंग करने के बाद आपको जो रिजल्ट आएगा, if it is a credit balance, that time it is a revaluation profit. If it is a debit balance, debit side is more than credit side, that time it is a debit balance. So if debit is more, debit balance, credit is more, credit balance. Credit more, that means you have to write it to the debit side of revaluation account, that is a revaluation profit. That profit is created to old partners, remember that. ये प्रॉफिट जो आएगा ये किसको क्रिएट करना है, ओल्ड पार्टनर्स को ही क्रिएट करना है, इनकमिंग पार्टनर का उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो वॉट एवर द चेंज हैपन्ड दैट विल बी गिवन इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. दैट्स वाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट अगर होगा, वो अकाउंट आप पूरा ख़त्म करोगे, आपको लायबिलिटीज और एसेट्स की रिवैल्यूएशन की फिगर डाल के आपको अगर क्रेडिट बैलेंस मिला, सो इट इज़ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, that would be credited to old partners capital account. तो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट. अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगा क्रेडिट से, दैट टाइम इट इज़ अ लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस. So debit is more than credit, at that time you need to post to the credit side, so you'll write their old partner's name by capital account, by partners capital account, by X account, by Y's capital account, and whatever the loss is distributed among that partners in the old profit sharing ratio. So that revaluation is loss is transferred to them automatically, that will be affected in your partners capital account, which is the next solution. पहला solution होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा सोल्यूशन होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. तो ये इफेक्ट यहाँ तक रिवैल्यूएशन के आ जाएंगे, इसमें आपको सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएगी. यहाँ तक आपको रिवैल्यूएशन की एंट्रीज पास करनी है, ये लास्ट पोस्टिंग होगी. इसके बाद पोस्टिंग, इसके बाद रिवैल्यूएशन की ये कंक्लूजन एंट्री होगी. इन शॉर्ट प्रॉफिट, ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और ट्रांसफर ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस, वॉट एवर मे बी, that is a concluding entry of journal entry. After that you will make the total of this, and it is for 10 marks. So carrying much importance for this chapter in board exam. Next is a goodwill adjustment in admission. मैंने आपको A दिखाया था पहले. In goodwill adjustments I have shown you there is a situation where कैश गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर. अगर ये गुडविल कैश में ना लाके, बी सिचुएशन में क्या होता है देखो, इफ गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स, मतलब गुडविल बिजनेस ने ही रेज किया है, फर्म ने ही रेज किया है नया पार्टनर आने की वजह से, क्योंकि ही माइट बी अ सोशल हैविंग दैट सोशल वैल्यू, ही माइट बी इज कैरिंग हिज ओन गुडविल, उसका खुद का कुछ गुडविल होगा सोसाइटी में. सो दैट टाइम दिस इज हैपनिंग, दैट गुडविल इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म. सो व्हाट इज द एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट आप ओल्ड पार्टनर्स को ही करेंगे, उसमें भी वही किया था. पहला एंट्री बस चेंज है कि उसमें पहला एंट्री था कैश में गुडविल है, सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, एंड देन गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. हियर डायरेक्टली वी विल पोस्ट दिस ओनली एंट्री इफ गुडविल रेज्ड इन द बुक्स. इतना ही आपको अगर बताया एडजस्टमेंट में,
raised goodwill by the share of the incoming partner rupees 5000. That time you will write this entry: goodwill account debit 5000 to X capital account to Y's capital account, that will be distributed among these two partners. So goodwill is distributed to old partners. गुडविल क्रिएटेड, गुडविल को डेबिट मिला, वहाँ पे डेबिट भी मिला था, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और क्रेडिट भी मिला था, मतलब डेबिट भी मिला और क्रेडिट भी मिला, मतलब द अकाउंट बैलेंस इज नील. एंड हियर इट इज इन दिस सिचुएशन, सेकेंड सिचुएशन में, बी सिचुएशन में आपको बस गुडविल को डेबिट दिख रहा है, मतलब एक बैलेंस क्रिएट हुआ है, डेबिट बैलेंस क्रिएट हुआ है. दैट्स वाई नोट इज प्रोवाइडेड. इन दिस सिचुएशन द गुडविल अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट. इसी वजह से एक ही एंट्री की वजह से आपको गुडविल की अमाउंट आपके बैलेंस शीट में दिखानी पड़ेगी. ये एंट्री आप कहाँ पे करोगे? वही जगह पे जहाँ हमने स्टार्टिंग में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए, एंड देन वी हैव ब्रॉट द कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर. देन अबाउट गुडविल, ये स्टेप्स है. पहले रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करो, प्रोविजंस रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट कर लो. सेकेंडली वट एवर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसेस है वो ट्रांसफ़र कर लो. Third is whatever cash or check amount brought by the new partner, that is capital contribution, वो एंट्री कर लो. Fourth is goodwill adjustments. Fifth is revaluation entries, and sixth is your transfer of revaluation profit or loss to the partner's capital account. These are the situation, these are the sequences of transferring the मेकिंग द जर्नल एंट्रीज इन द सिचुएशन ऑफ एडमिशन. तो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है कि इस सिचुएशन में गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा. इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट इफ इट इज रेज्ड. देन इफ सी सिचुएशन, इफ गुडविल रेज्ड एंड रिटन अप. ये ध्यान से सुनना कि आपको ये अलग अलग सिचुएशन एक बार आपके दिमाग में फिट बैठ गई कि आपको फिर से इसको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इन वन स्ट्रोक यू कैन लर्न इट, अंडरस्टैंड इट. सो इफ गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, गुडविल रेज किया है मतलब पिछली सिचुएशन, ये एंट्री बी सिचुएशन. नाउ सी सिचुएशन में रेज भी किया एंड रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ का मतलब आप ठीक तरह से जानते हो कि राइट ऑफ करना, रिमूव करना. तो इसकी एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री तो आप जानते हो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकेंड एंट्री इज ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ऑल पार्टनर्स मतलब कौन से पार्टनर्स? यस, ओल्ड पार्टनर्स प्लस इनकमिंग पार्टनर. नया पार्टनर जो आया है उसके साथ ही ओल्ड पार्टनर्स भी यहाँ पे शेयरिंग करेंगे. द गुडविल इज रिटन ऑफ इन ऑल पार्टनर्स. सो व्हाट इज नरेशन फॉर इट? बीइंग गुडविल रिटन ऑफ इन द न्यू रेशियो. व्हाट इज द नोट गिवन फॉर दिस? इसमें क्या होगा बैलेंस शीट में इफेक्ट? आप ठीक तरह से देख रहे हो, मैं आपको माउस का कर्सर दिखा रहा हूँ, आप ठीक तरह से इसको देख लेना और मुझे रीज़न क्या होगा ये बताना. यस, यू हैव गेस्ड करेक्टली. यस, गुडविल हैव डेबिट एंड क्रेडिट ऑल्सो. सो इफेक्ट इज नलिफाइड. जीरो बैलेंस ऑन गुडविल अकाउंट, सो दैट इन दिस सिचुएशन गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट. ओके, नेक्स्ट, राइट ऑफ में बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देगा. D situation, fourth situation we are going to understand. If goodwill brought in cash by new partner and withdrawn by old partners. Withdraw कर लेना मतलब क्या? अमाउंट ले लेना, to take it. Withdraw किया अगर ओल्ड पार्टनर्स ने और नए पार्टनर ने उसके लिए कैश लाया था, जो हमने पहले सिचुएशन में देखा था. सो एंट्री इज कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल. मतलब पहली सिचुएशन आपको पहली दोनों एंट्रीज वैसे ही करनी है, पर एडिशन इफेक्ट क्या देना है? विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. सो एंट्री वुड बी
ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यहाँ पे आपको ये एंट्री नई पास करना है. थर्ड एंट्री इट इज, आई हैव रिटन वन, इट इज बाय मिस्टेक. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स. मतलब ये गुडविल कौन विड्रॉ कर सकता है, ये ध्यान से देख लो. ओल्ड पार्टनर्स मतलब अपनी केस में एक्स एंड वाई, नॉट ए जेड. जेड ने तो लाया है, वो इनकमिंग पार्टनर में वो गुडविल लाया है कैश में. सो दैट विल बी गिवन टू द old partners only. What is the narration for it? Being goodwill withdrawn by old partners. Next is what is not given for it. In this situation the goodwill amount will not be shown in the balance sheet. Yes, here also we can see the goodwill got credit and debit. So that's why nullified effect, zero balance on the goodwill account. That's why there is no posting to the balance sheet. So will not appear, will not shown, goodwill will not shown in this particular situation. Next आता है फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में डिटेल में और देखने वाले हैं. दैट इज रिवैल्यूएशन. प्रायर टू दैट दीज जर्नल एंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, यू आर जस्ट स्टडिंग द हाउ टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में आप लेजर सीख जाते हो, पर जर्नल एंट्री इज अ बेस दैट मस्ट बी क्लियर. इट माइट हैपन दैट इन बोर्ड एग्जाम डायरेक्टली यू विल गेट ओनली journal entries of any topic. So be prepared for it. You must understand journal entries. The base must be clear, then only you can go for the ledger accounts. It is a secondary data, of course. See that revaluation account. In the revaluation account what things are going to be posted. जैसे हमने एंट्रीज देखी थी कि एसेट वैल्यू इंक्रीज हुआ तो एसेट का बैलेंस बढ़ता है, बराबर है. एंट्री था एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे ये पोस्टिंग है एसेट बाय एसेट अकाउंट व्हेन इट इज इंक्रीज्ड. और जब रिवैल्यूएशन के दौरान एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, समझो मशीनरी है डेप्रिसिएट हो गई, 50,000 की मशीनरी थी, 10% से 5,000 का डेप्रिसिएशन होगा. पोस्टिंग वुड बी हियर टू मशीनरी अकाउंट. हियर एसेट इज गिवन, क्योंकि कोई भी एसेट हो सकते हैं. डिक्रीज्ड value, depreciated value, you have to write here 5,000 only. Then what about liabilities? Asset increase होता है क्रेडिट, एसेट डिक्रीज होता है डेबिट. लाइबिलिटी इंक्रीज होता है डेबिट, लाइबिलिटी डिक्रीज होता है क्रेडिट. सो लाइबिलिटी इंक्रीज्ड on the, we'll write the it on the debit side. If liability decreased, we'll write in the credit side. Then next is a RDD created or written off or reduced or increased, whatever the situation. इसका प्रोविजन, इसका पोस्टिंग आपको लाइबिलिटी जैसा करना, ये ध्यान में रखना. एक आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि आरडीडी के वैल्यू अगर क्रिएट करते, लाइबिलिटी अगर क्रिएट करते तो डेबिट में आता है, वैसे ही आरडीडी अगर क्रिएट किया, इंक्रीज हुआ, डेबिट में आएगा. आरडीडी अगर कम हुआ मतलब रिड्यूस हुआ, 5,000 की प्रोविजन समझो 4,500 हो गई, सो 500 विल बी पोस्टेड हियर बाय आरडीडी अकाउंट. राइट ऑफ किया मतलब पूरा का पूरा निकल दिया. सपोज टू बी 5,000 का प्रोविजन था, पूरा निकलना है, सो बाय आरडीडी अकाउंट 5,000. एंड अल्टीमेटली you will find the revaluation profit or revaluation loss in this particular account. So if it is a credit side more, then to old partners capital account, that is revaluation profit. And if it is a debit more than the credit, that time you will write it to the credit side by old partners capital account. That is the revaluation account. And now we will see the next step, next solution step. What is that? Partners capital account. पार्टनरशिप फर्म में हमने देखा था कि बैलेंसेस ब्रॉट डाउन होते हैं क्रेडिट साइड को, वही हमने यहाँ पे किया है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ पे पार्टनर 1 2 3 इनकमिंग पार्टनर का P3 दिया है मैंने यहाँ पे, ठीक है. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन,
जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स, ये हमने जर्नल एंट्री में देखा था. सो दैट्स वाई बाय जनरल रिजर्व distributed in the old profit sharing ratio. Okay, then by cash account, what is the whatever the capital brought by third partner, incoming partner, that is created. Then goodwill raised, goodwill agar raise hua hai, that will be written in the credit side also. So by goodwill write in the old partners capital account because entry is known about the entries. Go for the next डेबिट साइड टू ड्राइंग्स. अगर ओल्ड पार्टनर्स अपने ही कैपिटल में से कुछ निकाल लेते हैं अमाउंट फॉर पर्सनल यूज, दैट वुड बी पोस्टेड एज अ ड्राइंग्स. गुडविल राइट ऑफ किया मतलब रेज करके राइट ऑफ किया, तो एंट्री आएगी टू गुडविल अकाउंट. राइट ऑफ किया तो ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ किया जाता है, रेज किया तो ओल्ड पार्टनर्स में किया जाता है, राइट ऑफ किया तो सारे पार्टनर्स में किया जाता है. ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू goodwill account. That's why in new profit sharing ratio you will write off it. Then if goodwill withdrawn by the partners, that time it is debited to cash account. So it is debited as you know the entry old partners capital account debit to cash account. And then ultimately whatever the profit or loss we had found out in this revaluation account, अगर ये प्रॉफिट होगा तो ये क्रेडिट में जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाएगा. बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कहेंगे उसे. इन ब्रैकेट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज आई एम राइटिंग दिस रेज्ड कैपिटल और प्रॉफिट. यू नीड नॉट टू राइट इट, but while making the notes you should write this similar format. Note down all the things whatever I am providing in your slides. And if it is loss आपका पिछली स्लाइड में क्रेडिट में दिख रहा था, यहाँ पे डेबिट में आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इन द ब्रैकेट लॉसेज. And ultimately you will balance these accounts. You are finding three partners. Old partners are only two, now new partners by the admission become three, and you will find the balances of all partners in three columns. So two balance carried down, these are the balances. Total as it is you have to write, you have to balance it, and you need to write the balances on the debit side. So that's all for the partners capital account, because this is a format which is necessary. That's why I have explained to you, which is very important. And while making these adjustment, effecting these adjustments, and maintaining revaluation account, partners capital account, moreover whatever the things required, that we will see in the practical problems, and that session would be in the third session, third part. Thank you for this listening this lecture.